Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Law, and today topic is free consent. This is the first topic in Unit 2. Now start with the meaning part. What is meant by the free consent? Under the Section 13 of the Indian Contract Act, define the word free consent, and according to the Act and the 13th section, it defined that free consent is mean basically two or more person are said to be consent when they agree upon the same thing in a same sense, or is that you can say the consent ad idem. It means that free consent वो हुआ जब when or two or more person are agreed upon the same thing on a same sense, when they know that when they are what the things of the contract and what the sense of the contract, and both the thing and the sense of the both party offer an acceptance party is same. That means the consent is free. As you know that whenever you make a contract, the two parties involved. One party is offer party, another party is acceptance party, and the both party freely, without any kind of pressure, without any kind of influence, without any kind of fraud, misrepresentation, or you can say mistake, the both party agreed upon the same thing in a same sense. This is called as free consent. तो फ्री कंसेंट क्या होता है? जब कोई भी दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दोनों पार्टी का जो मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए और जो उनका सेंस होता है और जो थिंग्स होती है वो दोनों पार्टी के लिए एक ही होती है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन पार्टी कुछ और सोच रही है एंड अदर पार्टी किसी और सेंस में उस कॉन्ट्रैक्ट को कर रही है. तो दोनों का सेंस और थिंग्स सेम होनी चाहिए. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्री कंसेंट के साथ हमेशा कॉन्सेंट हो जाते हैं. कंसेंट में किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए. एंड एज यू नो दैट to make a contract valid, not only the consent is necessary but the consent should also be free. As you know that when we make a contract, the contract should always should always consent of the both party offer an acceptance party. But this is not a enough to make a valid contract. In order to make a valid contract, there must be necessary that the contract and the both party should be freely consent the a contract. Means दोनों पार्टी freely मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर. तो कंसेंट होना चाहिए, एग्रीनेस होनी चाहिए. कंसेंट मीन एग्रीनेस, स्वीकृति होनी चाहिए दोनों पार्टी की, ऑफर पार्टी की भी एंड एक्सेप्टेंस पार्टी की. और साथ ही साथ ये जो स्वीकृति है मीन्स जो ये एक्सेप्टेंस है ये फ्री होनी चाहिए. इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए. मीन्स दोनों पार्टी जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर दे एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन in a same sense, in a same thing. So this is all about the free consent. Under the section 14 may consent is said to be free when it is not caused by सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग में ऐसे कंसेंट को फ्री कहा गया है जो कि बिना कोई कोहेशन, अनडू इन्फ्लुएंसेस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक के थ्रू कोई भी का कंसेंट होती है इसके बिना होनी चाहिए, उसी कंसेंट को हम फ्री कंसेंट कहेंगे. अदरवाइज अगर किसी भी कंसेंट में कोहेशन यूज हुआ है, अनडू इन्फ्लुएंसेस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक है, एंड इफ एनीथिंग इज अकर while accepting any kind, or you can say the consent of the party while accepting any kind of contract and the consent process, the contract is basically invalid, or you can say the void. So we can say that consent should always free and without any kind of pressure, or without should not be accepted by coercion, undue influences, fraud, misrepresentation और mistake. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पार्टी दोनों के दोनों बिना कोई कोहेशन, बिना कोई अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करनी चाहिए. तभी हम उस कंसेंट को क्या बोलेंगे? उस कंसेंट मीन्स उस एग्रीनेस को, उसकी स्वीकृति को हम फ्री मानेंगे. अदरवाइज हम इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड घोषित कर देंगे. मीन्स दिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कॉल्ड एज वाइड, मीन्स इनवैलिड. So this is all about, and the cohesion is defined under the section 15, and undue influences is defined under the section 16, fraud is defined under the section 17, misrepresentation is defined under the section 18, and mistakes is defined under the section 20, 21 and 22. This section is defined under the Indian Contract Act 1872.
Now moving towards the how many when the consent is not free. Consent जो होती है हमेशा फ्री होनी चाहिए, तो कब consent फ्री नहीं मानी जाएगी? when we call the consent is not free. तो before telling you what exactly when the consent is not free, I would like to give you an example so that you get clear idea what is the meaning of the free consent. Let's suppose take an example. A person, my dear student, I have not mentioned here the example, so what I am saying to you, please write it down in your notebook. A person agreed to sell his car to B person. एक person है A, वो अपनी कार को सेल करने को तैयार है B को, and the A person has a 3 car. ए पर्सन जो एग्री करने को तैयार है बी पर्सन को, उसके पास 3 कार है, एंड ए पर्सन वांट टू सेल द मारुति. ए पर्सन एक्चुअली में 3 कारों में से एक कार ही बेचना चाहता है, दैट कार इज मारुति. बट जो बी पर्सन है, बी पर्सन एक्चुअली में वांट टू बाय होंडा कार, not Maruti. But here A and B have not agreed upon the same thing in a same sense. क्योंकि दोनों अलग अलग, बेचने वाला जो A person है वो अपनी कार कुछ और बेचना चाहता है, and the B person who want to buy a something else. But जो बेचने वाला है उसके पास तीनों कार है. It means he has that car which B want to purchase. तो यहाँ पर दोनों ने डिस्कस नहीं किया कि what exactly only the A person has said that I have a 3 car, and the B person okay with that. And you can say that if the such kind of agreement will happen, then there will be a no consent and subsequently no contract will be formed. So क्योंकि यहाँ पर तीनों कारों में से एक कार को स्पेसिफिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ ए पर्सन कौन सा कार बेचना चाहता है एंड बी पर्सन कौन सा लेना चाहता है, शुड बी सेम, then only the contract will be performed. Otherwise the contract will be invalid or no contract will be performed. So this is all about that example part. Now moving towards the when the consent is not free. कब consent हमारा free नहीं होगा? When the cohesion, under influences, misrepresentation and mistake was there and is there in any kind of an contract. This contract is basically the consent in this contract is not free. So we will study and in one by one what do you mean by the cohesion and influences and what kind of a consent is not free. Let's move towards the one. The first one is known as when the consent is not free. The first part is that when a person, you can say the during the cohesion. Cohesion means when you can say that as you know that cohesion क्या होता है? Cohesion means forcibly compelling a person to enter into the contract. It means जब भी हम cohesion का means होता है जब हम forcefully किसी को pressure के साथ compel करते हैं, उसको जिद करते हैं कि वो किसी contract में agree हो जाए. तब कोई person आपसे compel करता है, आपके forcefully आपसे जोर जबरदस्ती गन पॉइंट्स पे आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाता है. दिस इज बेसिकली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली जो कंसेंट होती है, मींस जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो भी होगी, ऐसे में जो भी कंसेंट होगी, जो एग्रीनेस होगी कॉन्ट्रैक्ट की, वो कोहेशन वाली मानी जाएगी. इट मींस कंसेंट इज नॉट फ्री. और यहाँ पर वी कैन टेक एग्जांपल, एक्स थ्रेटन टू किडनैप वाई सन. यहाँ एक्स नाम का व्यक्ति है जो कि किडनैप करने वाला है वाई के सन को, इफ ही डज नॉट लैंड 50,000 रुपीज टू जेड. तो यहाँ पर एक्स नाम का व्यक्ति है जो वाई पर्सन के बच्चे बेबी सन को किडनैप करने वाला है. अगर वाई ने उसको पैसे नहीं दिए 50,000 के जेड पर्सन को, तो दिस इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली कोहेशन यूज हुआ है, मींस फोर्सफुली कंपेल किया गया है वाई को पैसे देने के लिए जेड को लिए. तो थ्रू द कोहेशन प्रोसीड फ्रॉम एक्स अगेंस्ट द वाई सन. तो यहाँ एक्चुअल में कोई जो कोहेशन हुआ है वो एक्स के द्वारा वाई के सन पे हुआ है, एंड द एग्रीमेंट एंटर इनटू द कोहेशन, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली invalid and you cannot be force that kind of contract. और लीगली हम ऑब्लिगेशन इसमें नहीं होगी कि हाँ जो कंसेंट है बेसिकली नॉट फ्री. नाउ we can say that the cohesion definition is explained under the section 15 under the Indian contract. This is the most important thing. You have to mention whenever you point out the what type of a consent is not free, whenever you mention any kind of a consent that is not free, like cohesion, undue influences, misrepresentation, or you can say mistake, you have to mention the section define how it is defined under the Indian Contract Act. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोहेशन की डेफिनेशन को सेक्शन 15 में एक्सप्लेन किया हुआ है.
कैसे एक्सप्लेन किया हुआ? द कोहेशन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल एक्ट। तो यहाँ कोहेशन को क्या बताया गया है? एक तरह का कमिटमेंट, और यू कैन से कमिटिंग और द थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। किसी को आप डराते हो या डराने के बेस पे कोई एक्ट करने के लिए कहते हो, ऐसा कोई एक्ट जो कि इंडियन कोड के हिसाब से, इंडियन पीनल ये लीगली वो अच्छा एक्ट या कह सकते हैं दिस एक्ट इज नॉट बी लीगली एक्सेप्टेड। और इंडियन पीनल कोड में फॉरबिडन मीन्स उसको बिल्कुल भी ऐसे कोई भी काम को आप एक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। इनवैलिड टाइप का कोई आप काम करवाते हैं किसी से फोर्सफुली, दिस इज बेसिकली अ कोहेशन। यहाँ I have mentioned here the consequence and effect of the cohesion. This is the most important question arises that cohesion means अगर हम किसी भी consent में अगर free consent नहीं है, cohesion के थ्रू अगर कोई contract हो रहा है, तो what would be the consequences of such cohesion? इसका effect क्या होगा? cohesion के थ्रू अगर कोई contract कर रहा है तो उसका effect क्या होगा? It means result क्या होगा? So we can say the three condition could be arises. तीन कंडीशन अराइजेस हो सकती है। द फर्स्ट वन इज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन बाय द कोहेशन। तो हम ये कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइडेबल हो जाएगा, मीन इनवैलिड हो जाएगा, और इस मीन कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि कोहेशन के थ्रू हुआ है, और क्योंकि ये कोहेशन के थ्रू यूज हुआ है इसलिए इनवैलिड हो जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है? जो भी इसमें नुकसान हुआ द बेनिफिट हैज टू रिस्टोर्ड बैक। तो दूसरा इसमें ये होगा कि जो भी कोई भी बेनिफिट आपने या कोई भी प्रॉफिट है दूसरी पार्टी को ऐसे कोहेशन के थ्रू मिला है, देन द अदर पार्टी शुड हैव टू रिस्टोर, और यू कैन से द रीबैक द प्रॉफिट दैट ही द पर्सन other person has gained through the contract। तो ये बेनिफिट्स जो होते हैं वो रिटर्न करने होते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कोहेशन। कोहेशन के थ्रू जो भी आपको पैसा मिला होता है वो पैसा आपको रिटर्न करना होता है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोहेशन। तो जैसे 50,000 अब Z को दिए Y ने, तो यहाँ पर Z को 50,000 वापस रिटर्न करना पड़ेगा। दिस इज अ रिस्टोर बैक द बेनिफिट्स। एंड द थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? अगर कोहेशन के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, द एग्रीव पार्टी मीन्स जिस पार्टीज को प्रॉब्लम्स है डज नॉट ऑप्ट टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वर्क एज एलिड। अगर इफ द एग्री पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड ही द पार्टी इज डज नॉट ऑप्ट टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इज the party is totally agree with the contract, and even if the cohesion is occur, the parties fully agree and fully consent over the कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में द कॉन्ट्रैक्ट इज कैन बी कॉल्ड एज वैलिड बिकॉज द एग्री पार्टीज एग्री टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर पूरी एग्रीनेस डिपेंड करती है एग्रीव पार्टी पे, मीन्स जो पार्टी है जिसको प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दैट पार्टी कैन कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। This is totally depend upon the aggrieved party whether he want to be involved in that contract or want to be include, or you can close down the contract or can void the contract process. And the important question that arises in the cohesion, that does the threat to commit suicide amount to cohesion? क्या कोई इंसान आपको कमिट सुसाइड करने के बेस पर धमकी देता है एंड देन आपको वो कमिट ही थ्रेटन यू दैट ही कमिटेड सुसाइडेड इफ यू नॉट परफॉर्म दैट काइंड ऑफ टास्क, एंड इफ दैट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म, देन व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच कोहेशन? तो क्या ये कमिटेड को सुसाइड करता है, तो क्या ये इस तरह का कोहेशन के अंदर आएगा क्या? यस, अगर कोई पर्सन अगर कोई कमिटेड सुसाइड करने की बात करता है और आपको उससे प्रेशराइज होके आपसे कुछ काम करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराता है, तो दिस बेसिकली यू कैन से दिस इज अ कोहेशन, दिस इज कम्स अंडर द कोहेशन, एंड दिस कंसेंट इज नॉट फ्री। तो ऐसे में कंसेंट फ्री नहीं होगी एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली इनवैलिड। Now moving towards the second part, that is the undue influences. We can say the consent when is not free. You can say when the undue influences was there. You can say the undue influences is present. So what do you mean by the undue influences? Undue influences means the strong mind overpower the weak mind of the person and induce him to do what he would not have done it if left his own judgment. यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह बात ये है कि कोहेशन में तो आपको फिजिकली मेंटली आप पे प्रेशराइज करके आपको काम करवाया जाता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा जाता है। एंड इन अनड्यू इन्फ्लुएंसेस में द जो पावरफुल पार्टी होती है वो अपनी जो कम पावरफुल पार्टी होती है अपने पावर का यूज करके कम पावरफुल व्यक्ति के थ्रू कुछ ना कुछ काम कर, मीन्स अपने इन्फ्लुएंस का यूज करती है।
अपनी पावर का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके सेकंड कम पावर वाले व्यक्ति से कोई अपना काम करवाते हैं। एंड दिस इज टोटली अबाउट द अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, मीन यूज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज ओन पावर एंड टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेसिकली क्या जाता है, और इसमें बेसिकली आप माइंड और मेंटल कोहेशन, यू कैन से मेंटल कोहेशन बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंसेस होता है। और यहाँ पर वीक माइंड पर्सन जो होता है, यहाँ जो स्ट्रांग माइंड पर्सन होता है वो ओवर पावर कर देता है वीक माइंड पर्सन को, और उनको वो काम करने के लिए मजबूर करता है जो कि वो अपने आप कभी नहीं करेंगे। तो दिस इज बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंस के थ्रू आप किसी को कंसेंट करवा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आप कंसेंट करवा देते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड होता है। But the undue influences definition is explained under the section 16. A contract is said to be induced by the undue influences where the relationship sustaining between the party are such that one party is in a position to dominate the will of other. तो यहाँ पर under the section 16 में undue influences has been explained, and according to the Indian Contract Act and another section 16 it explained that undue influences वहां माना जाएगा where जहां पर रिलेशनशिप दो पार्टीज के बीच में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पार्टी के बीच में, एक पार्टी डोमिनेंट होती है दूसरे की विल पर, मींस अदर पार्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ, यू कैन से कैन इन्फ्लुएंस द विल ऑफ अदर पार्टी। दोनों, एक पार्टी जो होती है वो दूसरी पार्टी की विल को, उसकी उसकी इसकी पावर को, उसकी विल पावर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सच काइंड ऑफ इस कंडीशन इज कम्स अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। ऐसा रिलेशनशिप जहां पर आप दूसरे की विल पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ऐसे में भी हम अनड्यू इन्फ्लुएंसेस यूज कर सकते हैं। एंड द सेकंड कंडीशन इज वेयर ही यूज द पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और कभी आप ऐसी पोजीशन में हैं वेयर यू नॉट डोमिनेट द विल ऑफ अदर बट यू आर यूजिंग द अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ द अदर। आप किसी की अनफेयर एडवांटेजेस यूज करते हैं दूसरे का, अपनी पावर से ज्यादा आप उसकी एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, अपनी पोजीशन का फायदा उठा के किसी से कुछ काम करवाते हैं। दिस इज बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। एंड अगर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस से अगर आप कोई अपना काम करवाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराते हैं, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली इनवैलिड और यू कैन से द वॉइड एंड कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ। तो अ पर्सन डीम टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अ पर्सन। तो कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जो ऐसी पोजीशन में होते हैं जो दूसरे की विल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? लेट टेक एन एग्जांपल वेयर द पर्सन होल्ड अ रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे हम ये कह सकते हैं लाइक मास्टर एंड सर्वेंट। मालिक और जो नौकर होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है, वहां पर एक पार्टी जो मास्टर पार्टी होती है वो डोमिनेंट होती है, और जो सर्वेंट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वो कम डोमिनेंट होता है, मीन्स वो अंडर वर्क अंडर द मास्टर। सो यहाँ पर जो मास्टर है कैन इन्फ्लुएंस द विल ऑफ द सर्वेंट। एंड अ सेम मैनर पुलिस और एक्यूज का जो रिलेशनशिप होता है इज बेसिकली सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप व्हेन द वन पार्टी इन्फ्लुएंस द विल ऑफ अदर। तो पुलिस एक्यूज की विल को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एंड इफ द एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट परफॉर्म अंडर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर द वन पार्टी इन्फ्लुएंस द अदर विल ऑफ अदर पर्सन विल, that this is basically comes under the undue influences, and such kind of a contract where the undue influences are used, such contract or the consent is basically invalid। तो ऐसी कोई consent अगर आप undue influences के थ्रू हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली नॉट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। एंड अनदर एग्जांपल इज वेयर द पर्सन स्टैंड इन रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। कभी कोई ऐसे रिलेशनशिप में भी होता है जब कोई ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप में होता है एंड द वन पार्टी इज यूजिंग द अदर पार्टी एंड यू कैन से टेक द अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ द अदर पार्टी लाइक फादर एंड सन, एंड द रिलेशनशिप हैज बीन वाइफ एडवोकेट वर्सेस क्लाइंट। एडवोकेट और क्लाइंट्स का होता है, तो एडवोकेट can use the unfair advantages of the client, and in the same manner the doctor and patient, डॉक्टर जो बेसिकली होता है कैन टेक द अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ द पेशेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनड्यू इन्फ्लुएंसेस कंडीशन, और यू कैन से द रिलेशनशिप विच इज बेसिकली यूज्ड व्हेन द अनड्यू इन्फ्लुएंसेस अगर। तो अनड्यू इन्फ्लुएंसेस बेसिकली यहाँ पर इस तरह के रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंसेस यूज होता है, और यहाँ पर अगर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के थ्रू कोई भी कंसेंट माना जाएगा, दैट कंसेंट इज नॉट फ्री। नाउ मूविंग टुवर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस, एज यू नो दैट रिजल्ट क्या होगा अगर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के थ्रू आपने कोई भी कंसेंट करवाया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म करवाया है,
दोनों पार्टी अगर एग्री होगी अंडर इन्फ्लुएंसेस के थ्रू, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा? ऐसे रिजल्ट में बेसिकली सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, मीन्स वाइडेबल मीन्स नॉट एक्सेप्टेड बाय द लॉ और नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, और दिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंसेंट हुआ है, दिस कंसेंट इज नॉट फ्री, एंड दिस कंसेंट इज नॉट फ्री बिकॉज ऑफ द अंडर इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पर आई हैव मेंशन हियर द pics. You can see the doctor is using the power of his, he is using the unfair advantages of the patient, and he is saying, the doctor is saying that sign the will or else I will I will I will give you injection, or you can see the he actually may he giving him a threaten that his life in risk. So this is kind of a power that doctor is using, and using the unfair advantages of the other, और यू कैन से द डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप में यहाँ डॉक्टर पेशेंट को उसकी रिस्क, उसकी लाइफ से रिलेटेड रिस्क दे रहा है, एंड ही इन ऑर्डर टू साइन द विल को साइन करने के लिए पेशेंट को डरा रहा है। तो दिस इज बेसिकली अंडर इन्फ्लुएंसेस, यहाँ डॉक्टर एंड पेशेंट के रिलेशनशिप में अंडर इन्फ्लुएंसेस यूज हुआ है। एंड इफ द सच काइंड ऑफ विल इज, अगर पेशेंट साइन कर भी देता है तो दिस एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इनवैलिड, तो ये इनवैलिड माना जाएगा बिकॉज यहाँ तो अंडर इन्फ्लुएंसेस यूज हुआ है, मीन्स डॉक्टर ने अपनी पावर और अपनी पोजीशन का यूज किया है। तो द कंसेंट जो पार्टीज की हुई, तो कंसेंट दिस इज बेसिकली नॉट अ फ्री। Now moving toward the misrepresentation, as you know that we have studied about the cohesion, then the undue influences, which is not the consent where is consent is not free, and then the third condition where the consent is not free, that is a misrepresentation. Misrepresentation is basically which is a false or misleading। जब भी हम किसी से झूठा या मिसलीड करके, मीन्स हम धोखे कुछ और बता के मिसलीड करके भी मेक the such kind of, we make the contract, and this contract is basically called as misrepresentation. If it means that representation is false and misleading. So whenever we make any contract with where the presentation of the product, or you can say the contract, is basically false or misleading, where the one party try to hide something from the other party, and this in such condition the misrepresentation, you can say the presentation is misrepresentation, means presentation was not legal, or you can say not true. So misrepresentation, this is all about, it may be innocent or intentional. The misrepresentation can be innocent or intentional, जानबूझ की भी हो सकती है और innocently भी हो सकती है। If wrong representation made willfully with the intention to deceive the other party, अगर intentional, अगर जानबूझ की representation intentionally किया हुआ है, wrong representation किया हुआ है, और सोच समझ के इंटेंशन से आपने डिसीव वन पार्टी, डिसीविंग द अदर पार्टी मीन्स धोखा दिया है, तो दिस इज बेसिकली ऐसा रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कहलाया जाएगा। यहाँ पर दोनों, एक पार्टी को पता है कि ही एक्चुअल में नो दैट ही इज डिसीविंग, और यू कैन से द misrepresenting to the other party, and this is basically about the fraud. तो जब भी misrepresentation intentionally होगा, then misrepresentation intentionally known as fraud. On the other hand, if the misrepresentation is done in a or made in a innocently way, बिना दोनों पार्टी को, एक पार्टी को नहीं पता कि वो मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है, विदाउट नोइंग दैट he entered in the misrepresentation without any intention to deceive the other party, it means that when the other party is not know that the other party has not intention to deceive the other party, and this is known as misrepresentation. So we can say that whenever the party intentionally wrong representation is to deceive the other party, when the one party try to deceive the other party, this is basically known as fraud. And if the one other party innocently deceive the other party, innocently means without knowing that he is deceiving, then in such condition then you can say such contract misrepresentation. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, जब इंटेंशनली कोई इंसान किसी को धोखा देता है, दिस इज फ्रॉड, और कोई इनोसेंटली गलती कर देता है, मतलब बिना कोई इंटेंशन के कोई दूसरी पार्टी को मिसरिप्रेजेंट कर देती है, तो दिस इज बेसिकली अ मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड अंडर सेक्शन 18 डिफाइन द मिसरिप्रेजेंटेशन। तो
अंडर सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है. लेट टेक एन एग्जांपल. एक्स से टू वाई हुज इंटेंशन टू परचेज हिज लैंड दैट इज प्रोड्यूस 50 क्विंटल ऑफ wheat per acre. You can say it's X a person है जो Y person को कहता है कि मेरा who is intended to purchase his land. Y person हो यहाँ पर X अपने Y person को कहता है कि वो उसके अपने लैंड मेरे लैंड में Y जो person है he wanted to purchase the land of X person, and X person is saying that his land is basically producing a 50 क्विंटल ऑफ राइस पर एकड़. तो वो कहता है कि मेरा जो लैंड है 50 क्विंटल गेहूं एकड़ के हिसाब से प्रोड्यूस करता है. एंड द एक्स बिलीव दैट द एक्स पर्सन है एक्स जो पर्सन है हु रियली वांटेड टू परचेज दैट लैंड, वो वाई पर्सन के कहने पर कि 50 क्विंटल ऑफ राइस प्रोड्यूस करता है, उसके कहने पे एक्स बिलीव दैट स्टेटमेंट इट टू बी ट्रू एंड ऑल द ही डिडंट हैव अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर बिलीव. And later on it was found that the land produced only 30 quintal of wheat per acre. This is a misrepresentation. So we can say with the one party is intentionally, you can say that innocently, or you can say that this is basically you can say the person is giving an idea to the other person that his land is producing almost 50 quintal, but in actual when the land is producing the wheat, in actual only the 30 quintal of rice is produced. So this is basically a misrepresentation because one party innocently deceive the other party, means innocently say the statement, and which is statement is later on not true. So here the intention is not here the intention is not deceiving the other person, but the intention is innocent, means the party is actually not knowing what exactly the producing power of the land. So this is basically misrepresentation. Without, we can say the person is not misleading, you can say they is misleading the person, but you can say innocently without knowing that he is actually deceiving the other party. So what do you mean by the fraud? As you know that whenever the person is making any statement or any representation with the intention, अगर वो जानबूझ के कोई भी काम करता है, कोई बात बोलता है या धोखा करता है, या कोई भी बात प्रेजेंटेशन कोई भी ऐसी रखता है जिसमें जानबूझ के काम किया गया है, this is basically fraud. When any person makes to another a statement which he does not himself believe to be true to induce later to the enter into the content, he commit a fraud. तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉड. इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन अमाउंट टू फ्रॉड. इंटेंशनली कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, जानबूझ के कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉड. टू कंस्टिट्यूट फ्रॉड देयर मस्ट बी मेकिंग अ फॉल्स सजेशन. तो कभी भी हम जब फॉल्स टू कंसिडर फॉर देयर मस्ट बी अ फॉल्स सजेशन. तो फॉल्स सजेशन होते हैं जब भी हम फ्रॉड करते हैं. तो यहाँ पर तो एग्जाम्पल है, हैव मेंशन हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट फ्रॉड का एग्जाम्पल है. एक्स से टू वाई दैट हिज कोट इज मेड ऑफ प्योर वूल. यहाँ पर एक्स नाम का व्यक्ति है जो वाई पर्सन को कह रहा है कि उसका जो कोट है वो प्योर वूल का बना हुआ है. दो ही नो दैट दिस इज अनट्रू. यहाँ इंटेंशनली एक्स पर्सन नो दैट दिस इज नॉट ट्रू, दैट हिज कोट इज नॉट मेड ऑफ प्योर वूल. द वाई परचेज द कोट. यहाँ वाई पर्सन इस इंटेंशन से खरीद लेता है कि जो वूल है, जो कोट है, इज बेसिकली मेड ऑफ प्योर वूल, एंड बिलीविंग दैट एज ए स्टेटमेंट एक्स की जो स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस इज फ्रॉड बिकॉज एक्स पर्सन नो दैट हिज कोट इज नॉट मेड ऑफ वूल, बट इंस्टेड ऑफ दैट ही इज मेकिंग अ misrepresentation, or you can say they're making a intentionally misrepresentation to the Y party, and the Y party is accepting that offer, and this is called as fraud, or this contract basically voidable, means not enforceable by the law. और ऐसे में अगर कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा देके कोई काम या कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाते तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, इनवैलिड या यू कैन से voidable होता है. द अनदर एग्जांपल यू कैन टेक द मनोज से टू द दीपिका हिज कोट इज मेड ऑफ प्योर वूल, दो ही नो दैट दिस इज अनट्रू. दीपिका परचेज द court believing that Manoj's statement is true. This is fraud by the Manoj, therefore the contract is voidable. The same example I have mentioned here.
द मीनिंग सेमिंग, मनोज नाम का व्यक्ति है जो कि दीपिका से झूठ कहता है कि उसका जो कोट है इज मेड ऑफ प्योर वूल, एंड दिस इज द अनट्रू स्टेटमेंट, बट द दीपिका इज बिलीविंग ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द मनोज, एंड ऑन द बिलीव और on the belief of the true statement, Deepika purchased the coat. But later on, it revealed that the statement which was made by the Manoj is not true. So this is the contract is basically voidable, or you can say the contract will not be enforceable by the law, or this is invalid contract. Now moving towards the mistake part, this is the fourth, you can see. First we have studied about the coercion, undue influences, misrepresentation, fraud, and then this is the fifth one, that is a mistake. मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक से भी अगर कोई भी हम कंसेंट होता है, बाय मिस्टेकली इफ वी मेक एनी कंसेंट, तो यहाँ कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा. तो दिस इज द mistake which show that statement, or you can say the contract which is made due to the mistake, this contract is basically invalid, or you can say that this consent is not free. So what do you mean by the mistake? When the party do not agree on the same thing in a same sense because of the some misunderstanding. जब भी कोई दोनों पार्टी सेम थिंग्स और सेम सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, अगर कोई भी पार्टी डू नॉट एग्री ऑन अ सेम थिंग इन अ सेम सेंस बिकॉज ऑफ द सम मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड मिस्टेक. अगर मिस्टेकली दोनों पार्टी एक थिंग को सेम सेंस में मिस्टेकली समझ लेती है, बट एक्चुअल में सेम थिंग सेम सेंस में एक्चुअल में होता नहीं है, तो दिस इज यू कैन से दैट ड्यू टू द मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग the both party enter into the contract. And if the by mistake, if two party can enter into the contract, this contract basically is not valid because the consent here is not free. If the agreement is made under the mistake, अगर कोई भी agreement mistake के through होता है, this means that there is no consent when the consent is nullified by the such mistake. यहाँ पर कोई consent नहीं मानी जाएगी क्योंकि जो consent है वो mistake के through nullify हो जाएगी, means mistake के through ऐसी consent को हम agree नहीं करेंगे. Then the agreement has no illegal effect, or the effect of mistake is to make a contract invalid. So we can say that whenever two party offer an acceptance party, both party make an contract, and but the contract is basically was not you can say, and the both party do not agree on the same thing in the same sense due to the misunderstanding, and in such circumstances such contract is basically a mistake contract, or you can say such contract is basically invalid contract and cannot be enforced by the law. Let's take an example. एक्स ऑफर टू परचेज अ हाउस ऑफ वाई. यहाँ पर एक्स है जो कि ऑफर करता है अपने हाउस को वाई को बेचने के लिए एट द रुपीज ऑफ 2000 रुपीज में बेचने के लिए बात करता है. वाई रिजेक्ट द ऑफर. वाई इस बात को रिजेक्ट कर देता है, एंड लेटर ऑन वाई राइट अ लेटर ऑफरिंग टू सेल हाउस टू द एक्स फॉर द 1200. तो यहाँ पर एक्स नाम का व्यक्ति है जो ऑफर रखता है वाई के घर को परचेज करने के लिए. तो एक्स ऑफर रखता है कि मैं तुम्हारे वाई को बोलता है मैं तुम्हारे घर को 2000 रुपीज में परचेज करने के लिए रेडी हूँ. तो वाई कहता है नहीं, आई एम नॉट एग्री टू सेल माई हाउस एट 2000 रुपीज, एंड वो रिजेक्ट कर देता है. पर लेटर ऑन जो वाई पर्सन होता है वो एक लेटर लिखता है एक्स को, कहता है कि जो तुमने मुझे 2000 रुपीज कहा था मैं उसमें एग्री नहीं हूँ, बट आई एम हियर मेंशनिंग अ न्यू ऑफर, दैट इज आई एम रेडी टू सेल माई लैंड 1200. Here the why mentioning the 1200 rupees, though his real intention was to make an offer for the 2100. It means वहां वो 1200 एक्स्ट्रा की बात कर रहा है, but here due to the misunderstanding, or you can say by mistake, X immediately accept the offer because X think that the Y is ready to sell his land house at 1200, but the X person actually want to sell his, you can say the actually Y person is actually want to sell his land at 2000 plus 1200. तो यू कैन से 2100 में वो सेल करने को रेडी है, मगर बाय मिस्टेक दोनों पार्टी गलत समझ लेती है. जो वाई पर्सन है वो 2100 में बेचने को तैयार है, बट द एक्स पर्सन थिंक दैट द वाई पर्सन इज एग्री टू सेल एट 1200. तो ड्यू टू द मिस्टेक the X person जो है immediately accept the offer. Here the X is not entitled to enforce the agreement.
बिकॉज जो एक्स पर्सन है वो एग्रीमेंट में इन्फोर्स नहीं हो सकता, बिकॉज एज ही न्यू दैट ऑफर वाज मेड बाय द वाई अंडर अ मिस्टेक। तो यहाँ पर दोनों पार्टी को लेटर ऑन गेट टू नो दैट, क्योंकि जो वाई पर्सन है, वाई पर्सन को पता चल जाता है कि उसने मिस्टेकली यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और मिस्टेकली एक्स ने कुछ और समझ लिया है कि, तो यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ड्यू टू द मिस्टेक, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्स बाय द लॉ और दिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इनवैलिड। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेयर द कंसेंट इज नॉट फ्री। जब भी कोई कंसेंट ऐसा होता है जिस कंसेंट में दोनों पार्टीज के थ्रू कोई भी प्रेशर आ जाता है, वी कैन से द एनी काइंड ऑफ प्रेशर और यू कैन से द एनी काइंड ऑफ कोहेशन, अंडर इन्फ्लुएंसेस, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली नॉट फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट। और जब भी कंसेंट अगर हमारा फ्री नहीं होता तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। तो कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक, कोहेशन, अंडर इन्फ्लुएंसेस, मिस रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन से कोई भी इन चीज़ों के बिना कंसेंट होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से द कंसेंट इज फ्री। So what would be the consequences and effect of the cohesion, undue influences, mispresentation, and fraud and mistake? This is one of the most important question that can be asked during the examination, or you can say in the examination, that की consequences क्या होगा अगर cohesion के through कोई consent हो जाता है, undue influences के through कोई consent कोई होता है, misrepresentation के through कोई भी अगर contact होता है, and the fraud या mistake के through कोई भी consent होता है, तो what would be the resultant of that kind of situation? अगर कोई भी कंसर्न इस सिचुएशन में होता है तो क्या होता है, आपको सिर्फ तीन ही कंडीशन होगी। द फर्स्ट कंडीशन इज कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होगा, मींस नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लॉ, और यू कैन से दैट नॉट एनफोर्स बाय द लॉ। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इनवैलिड माना जाएगा अगर कोई भी हमारा इसके थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट होता है। द सेकंड वन इज दैट कोई भी अगर बेनिफिट इसमें दूसरी पार्टी को मिला है, दैट बेनिफिट शुड हैव टू बी रीबैक, वापस मिलना चाहिए पार्टी को जिस पार्टी को नुकसान हुआ है। एंड द थर्ड, इसका रिजल्टेंट यही होता है, जो जिस पार्टी को नुकसान हो, जो एग्रीव पार्टी है, जिसकी कोई कंप्लेन पार्टी है, जिसको लॉस हुआ है, ही कैन द पार्टी डज नॉट ऑप्ट टू, ही कैन it depend upon the aggrieved party, he want to be continue that contract or want to valid that contract। उस पर डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहती है या उसको इनवैलिड करना चाहती है। तो ही कैन से दैट it totally depend upon the aggrieved party, if he the aggrieved party want to want to invalid the contract or the want to valid the contract, it totally depend on the agreed party। So this is the all the three consequences that is resultant of the cohesion, undue influences, misrepresentation or the fraud, or this is not a free consent। So this is a situation, so start with the, so we can say this is all about the today topic, and the we can say that this is the first topic in a unit 2, and please revise the topic continuously। Okay, then bye.